सफल है। जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना। मन चिंदिया फल पावना। हमें विचों जाए, दंडोत बंधन अनेक बार। सर्व कला समर्थ, डोलन तेरा को प्रभु। राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सत्कार योग, परम सम्मान योग, चवर छतर तख्त दे मालिक, वालिए कुल आलम, मुजस्मे आबे हयात, सरवरे कायनात, बाणी दे बोहत शब्दा अवतार, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच गुरुद्वारा साहिब बाबा मक्खन शाह लवाना सिख सेंटर बोरगो सन याकमो विखे ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵਨ ਭਾਰੂ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸ਼ਾਨ ਹੋਸੀ। सवा लख ना एक लड़ान वाला दशमेश आप किड्डा को बलवान होसी। जिस दे बारे बाबा बुल्ले शाह एक मुसलमान फकीर लिखदा, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। जिस दे बारे अल्लाह यार खां जोगी लिखदा, किस शान का रुतबा तेरा, ओ कलगियां वाले महाराज तू केस उचाई ते बैठा होया है। मेरी कलम ते मेरी शियाई उस मुकाम तक तेरी अवस्था नू बयान नहीं कर सकती। किस शान का रुतबा तेरा, अल्लाह गनी है मस्कीन गरीबों में, दलेरों में जरी है। जे दुनिया दे मस्कीनां दी गरीबां दी गल करिए ते सब तो गरीब कलगियां वाला। फिर शब्दां वल ख्याल दिओ, दुनिया दे गरीबां दी गल कर रहा, अध्यात्मक गरीबां दी गल नहीं कर रहा। साडा एक बच्चा किते उरे परे हो जावे, माँ बाप सारी उम्र कंध विच सिर मार मार के अपना समा बतीत करते हैं। लेकिन कलगियां वाले महाराज तू एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ते अगे चलिए, सरबंस ही पूरा तू सिख कौम तो तू वार दिता। मस्कीन गरीबों में, दलेरों में जरी है। ते जे सूरमिया दी गल करिए ते सब तो वड्डा महाबली सूरमा धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल मैं पहला बेनती कर दियां, गज वज के फतेह बुलानी है। तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल रल मिल के सांझ पाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आओ साध संगत जी, भाई साहब जी जदों मेरे बारे अनाउंस कर रहे सी ना, भाई साहब भाई गुरभेज सिंह जी कि दास बंगला साहिब ते मंजी साहब हाजरी भरदा। साध संगत जी पता नहीं उदों की होया, अखां दे विच ना नीर आ गया, क्योंकि ये अस्थान ऐसे हैं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਲੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਸ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। जिस डिठे सब दुख जाए, 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 तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ निद आवे ताए, कर नौ निद आवे ताए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁੰਝਣੀ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁੰਝਣੀ ਆ ਗਈ। ਫਟ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਹੈ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝੁੰਝਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ, ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਜਿੱਧਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਹਲੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਚਰਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ, ਸੋਏ ਮੈਨੇ ਆਵਾਜ਼, ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ। ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, 2 ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ,
पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। पंध मैंने रस्ते तो जो मैं चली उधर नूं ते मेरे अंदर ठंड महसूस हुई। तो साध संगत जी, गुरु है ही ठंड दा सोमा। जे इस गुरु को आके ठंड ना आई तो फिर माफ करना, बाणी कहती है साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक। फिर तू ये गल कह कि मेरे विच ही कमियां, इत्थों ते ठंड आ ही रही है, अग तां मेरे अंदर लगी हुई है। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली, गुर दर्शन देख निहाली। तन मन होए निहाल, तन मन होए निहाल, तन मन होए निहाल, तन मन होए निहाल। जागुर देखा सामने, जागुर देखा सामने, सा संगत जी किसी खेत दे विच बीज पाउण तो पहलां ओहदी सफाई करनी पैंदी है। खेत विच बीज खिलारन तो पहलां ओहदी सफाई करनी पैंदी, उहनूं वाहिया जांदा है। सो ये जिहड़ा आपां हुण तक दी किरिया कीती है, हुण आपां अपने खेत दी सफाई कीती है। आओ जो अज दा बीज है वो आपां इस खेती दे विच पाईए तां जो ओहदी सानूं समझ आ सके। एक बच्चे दी जिंदगी दी घाड़त घड़न वास्ते एक विद्वान पता की लिखदा, कहंदा हे मां तेरा दुध ते तेरी कुख उस दिन सफल मन्नी जावेगी जिस दिन तेरी कुख दे विच बच्चा नहीं पैदा होवेगा, एक शख्सियत पैदा होवेगी। बच्चे ते जानवरां दे घरां विच भी पैदा हुंदे आ, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वो एक शख्सियत नहीं हुंदे। वो लिखदा कहंदा हे मां तेरी कुख ते तेरा दुध उस दिन सफल होवेगा जिस दिन तेरी कुख दे विचों एक बच्चा नहीं एक शख्सियत जन्म लवेगी। उस शख्सियत दे इस जहान ते जान तो बाद भी दुनिया ओदियां बातां जिहड़ियां वो पाया करनगी। असीं देखदे हां गुरु नानक देव जी महाराज माता तृप्ता ते मेहता कालू जी दे घर विच उन्हां दा आगमन हो रहा, ते अज भी असीं कहने हां कि गुरु नानक देव जी साडे अंग संग हन, अज भी बातां पाउने हन। इसे तरह गुरु नानक दे घर दा एक सिख जिहदा नाम है भगत पूरण सिंह, जिन्हां दी अज आपां 29ਵੀਂ बरसी मना रहे हैं, ਜਿਹੜੇ 5 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, परंतु जदों असी पिंगलवाड़ा देखते हाँ तो पिंगलवाड़े दे विच वाकया ही सिख जिहड़ा वो एक सेवा कर रहा है। ये एक ऐसे सिख की आपां बात पाउण जा रहे हाँ जिहड़ा सिख आप ते भुखा रहा, परंतु उन्होंने लंगड़े लूले ते बेसहारियां दा पेट भरिया। ये सिख उस सिख की बात पाउण जा रहे हैं जिस सिख ने अपने आप नूं नंगा रखिया, लेकिन उसने लंगड़े लूले ते बेसहारियां ते मंद बुद्धि वालियां दा उन्हें तन जिहड़ा वो ढकिया। असी उस सिख की बात पाउण जा रहे हां जिस सिख ने आप ते
नीले आकाश दे थल्ले उन्हें समा बतीत किया, लेकिन उसने लंगड़े लूले ते बेसहारियां नूं उन्होंने एक सहारा दिता, एक उन्होंने छत दी। मेरी अर्ज है भगत पूरन सिंह जी तो। भगत शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच देख लीए, भगत शब्द दे अर्थ ही की है? मत हुंदी होए इयाना। भगत की परिभाषा की है? बड़ी वड्डी मेरी मत है, मैं बड़ा वड्डा विद्वान है, लेकिन जदों मैं गुरु दे घर आउणा ते मैं कह रहा तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी। राम मेरी ते कोई मत ही नहीं है। मत हुंदी होए इयाना, तान हुंदे होए निताना। ताकतवर होने के बावजूद भी कहता मेरिया बावां दे विच कोई बल नहीं है। मत हुंदी होए इयाना, तान हुंदे होए निताना। अन हुंदे आप बंडाए। अपने मूँह दे विच गराई पाउण लगा, हले गराई तोड़ के मूँह दे कोल आई आ, बाहरों दरवाजा खड़किया, हे सिखा मैं कई दिनों तो प्रशादा नहीं छकिया। कहते आ जा मेरे कोल, मैं कहते इस जीवन तो की लेना, मैं अपनी गराई तेरे मूँह दे विच पा देना। अन होंदे आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए, को ऐसा भगत सदाए। बाबा फरीद जी के सलोकां दे विच भगत की परिभाषा गुरु अमरदास जी महाराज कहते भगतां की चाल निराली। उन्हां दा उठना बैठना चलना बोलना कहते आम संसार तो वखरा। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी। बिखम मार्ग चलना, बिखम मार्ग चलना ये वो है जेड़ा आप ते भुखा रह गया, आप ते फाके कट्टे, पर उन्हें बेसहारियां दा ढिड भरिया। इस तो औखा होर रस्ता की लभना जी। सारी उम्र अपनी जिंदगी उन्हें सादगी विच बतीत की, किसी किस्म का उन्हें चोला नहीं पाया, आडंबर नहीं किया, साडे वांगू स्टेज ते बह के लिशक पुछ के उन्हें प्रचार नहीं किया। इस तो वध बिखम रस्ता होर की है? भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी। बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। उदा रस्ता की है? खन्नियों तिखी वालों निकी, खंडे तो भी बरीक उदा रस्ता। जिन्हों बाबा फरीद जी कहते वाट हमारी खरी उड़ीनी, खन्नियों तिखी बहुत पे ईनी, उस ऊपर है मार्ग मेरा। ते बाबा रविदास जी कहते कट अवगढ़ डूगर का नाम। मेरा रस्ता कहते बड़ा औखा, कहते कट अवगट, किते नीवा किते पहाड़ियां किते जंगल किते कुछ। कट अवगट डूगर के ना, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये स्यों एक बेनती, मेरी पूंजी राख मनार। को बनजारो राम को मेरा टांडा ला दिया। टांडा शब्द उहदे वास्ते वरतिया गया सी जिथे बनजारे आके आराम करते सी। जिन्ने भी पंजाब दे विच टांडे है ना, समझ लियो कि उत्थे आके बनजारियां ने आराम किया, अपना डेरा लाया। उस शब्द नूं टांडा आपां अखीर दे विच इस शब्द नूं समा होया ते उहदे मुताबिक आपां खोलांगे शब्द नूं। को बनजारो राम को मेरा टांडा लादिया जाए रे, हों बनजारो राम को सहज करूं व्यापार। मैं राम नाम तन लादिया, आ है भगतां दे कोल, मैं राम नाम तन लादिया। बिख लादी संसार उर्वार पार के दानिया, लिख ले हो आल पताल। मोए जम डंड ना लगी ता जीले सर्ब जंजाल। उस भगत दियां आपां बातां पाउणियां। भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीरत, गाम दे बड़ा प्यारा भगत दे बड़े। और फिर देखो एक होर गल, मैं अपने नाम दे नाल संत ला लवां, ब्रह्म ज्ञानी ला लवां, तुसी इतराज करोगे, लेकिन पूरन सिंह दे नाल भगत शब्द लगा, किसी ने अज तक इतराज नहीं किया। थोड़ा जिहा बरीकी नाल को समझो। आम तौर पर कोई बंदा अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहन लगा होवे भी, लेकिन कोई एक ऐसा फिरका उठ पैंदा जिहड़ा उहदा विरोध करना शुरू कर दिंदा। लेकिन भगत पूरन सिंह जी दे नाल शब्द भगत लगा, लेकिन उन्हां दा किसी ने अज तक विरोध नहीं किया, क्योंकि वो अपने आप दे विच पूरन भगत सीगे। ते जिहड़ा फिर पूरा हुंदा ना, उहनूं गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते पूरन कभू ना डोलता।
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਝੱਖੜ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁੰਜੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ, ਉਹ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਘਰਾਂਝਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕਰੜਾ ਬੋਲਦੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਬਦਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ। ਹੁਣ ਬਦਵਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਾਂ ਰੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਾਂ, ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ। ਉਹ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤਹਿਸੀਲ ਉਹਦੀ ਹੈ ਖੰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ। ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਦਮਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੁੜਕ ਕੇ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਤੇ ਕੰਠ ਨਹੀਂ। ਪੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ 9 ਮਈ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆਈ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨ ਕੀਨ। ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 550 ਸਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ?
मेरी बेनती हथ जोड़ के है, रिश्तेदारां दे वल्लों कड्डियां गालां ते दित्ते मेने सानू अज तक याद है। उस दिन तू मैनू आ गल कही सी, है ना गल, अखबार दी कल्ली कल्ली आपां पंक्ति पढ़ जाने हैगे हैं, लेकिन गुरु नानक दा जपजी नहीं कदी पढ़िया टेक के। वो गल्लां सारियां याद है सानू। सिख गुरु का होई गयो जपजी कंठ न कीन, तंदुल बिन तुख कहे काम, तैसे सिखो चीन। कहंदे जिद्दां झोना वड्डी दा, झोना वड्ड के जेड़े ओदे चौल है, वो चौल कहंदे जाके मंडी वेचदे आ, लेकिन चौल भी हुंदे आ ते चौलां दे नाल ओदा कसार भी हुंदा। कसार दी भी कीमत पै जांदी है मंडी दे विच। जे असी चौल वखरे कर लीए, कल्ले कसार दी बोरी लैके मंडी वे जाइए ते अगला कहंदा जा जाके अग ला दे, इनू मैं की करां। तंदुल चौल तुख जेड़ा ओदे आसे पासे कसार है, कहंदे सिखा तेरे ये हालात है, जिद्दां चौलां नू वख कर लिया वो तुख कल्ला रह गया, तेरी आहो ही कीमत है जिहड़ी ओदी कीमत मंडी विच पैनी। जे तू जपजी कंठ नहीं कीता, सिख गुरु का होई गयो जपजी कंठ न कीन, तंदुल बिन तुख कहे काम, तैसे सिख को चीन। आ सिख दे हालात है, आ सिख दी कीमत है। इस करके मेरी बेनती है, मैं इस बार इटली दे दौरे दे विच जपजी साहिब ते जोर दिता जी। जपजी एक ऐसा है जेड़ा तुहानू लोक विच भी सवारेगा ते जदों लोक नू छड्ड के जाओगे पर लोक विच भी तुहानू कहेगा आओ बैठ आदर सुभ दिओ। उत्थे कोई नहीं कहेगा रे रे दरगाह कहे ना कहू, आओ बैठ। गुरु गोबिंद सिंह ने कहना आ मेरे पुत, ये ते खंडे बाटे दी पौहल दी पहली बाणी सी, तेनू कंठ है आ मेरे कोल। कहंदे ये गुरु नानक देव जी महाराज दा वो शाहकार रचना सी, आ मेरे कोल। सिख गुरु का होई गयो जपजी कंठ न कीन, तंदुल बिन तो कहे काम, तैसे सिखो चीन। जपजी साहब नू कंठ करिए, जपजी तो शुरुआत करिए। मैं बेनती कर रहा सी महताब कौर, समा चलदियां महताब कौर अपने घर दे विच जवानी दी दहलीज नू पार करना शुरू किया। उन्हें घरदियां ने ओदा रिश्ता कर दिता, ओदा विआह कर दिता ते पुरातन समय विच 6-6 महीने मुकलावे नहीं सी जांदे। ये तकरीबन मैं तुहाडे नाल गल कर रहा 1900 दे लागे छागे दी, 1902 1904 दी गल कर रहा। ते पुरातन समय विच विआह हो जांदे सी, मुकलावे जिहड़े सीगे वो थोड़ा समय बाद जांदे सी। अज 6 महीने 7 महीने पूरे हो गए, महताब कौर तैयार हो रही है अपने पति नू मिलन वास्ते। उन्हें 2-4 दिनों विच जाना मैं, लेकिन उधरों सुनिया की आया, महताब जिहदे नाल तू 4 लावां लईआं सी वो रात दा दुनिया तो चढ़ाई कर गया, वो रात दा दुनिया तो चढ़ाई कर गया। महताब कौर जिहड़ी सी वो सुहागन नहीं बनी, वो ते कुआरी ही जिहड़ी सी विधवा बन गई। महताब कौर नू लोकां ने कहना शुरू कर दिता ये ते कर्मां दी माड़ी है, ये अपने घर वाले नू खाण वाली है। जिथे भी ओदा नवा रिश्ता हुंदा ये गल पहला ही पहुंच जांदी भी इहदे नाल रिश्ता ना करियो, ये ते हल्ले अपने घर वाले कोल गई नहीं, ओदे कोल जाण तो पहला ये ते हल्ले सुहागन बनी नहीं, ये ते सुहाग दा इहने आनंद नहीं माणिया ते सुहागन होण तो पहला ही ये अपने घर वाले नू खा गई है। खैर ये साडे मर्द प्रधान समाज दी ये एक फितरत है कि असी औरत नू माफ़ करना जिहड़ी गल कहण लगा, असी गुरु नानक दे जे फलसफे नू समझिया हुंदा ना ते असी औरत नू कदी भी पैर दी जुत्ती ना मनदे। मेरे क्षमा कर लियो, जे असी गुरु नानक दे फलसफे नू समझिया हुंदा ते असी औरत दा सत्कार जिहड़ा सी वो असी पूरा करना। ये गल्लां जी चलण लग पईआं। खैर राजेवाल पिंड दे विच एक हिंदू परिवार है, ਉਹਦਾ नाम है, उस परिवार के मालक का नाम है शिबू मल। ये शिबू मल जिहड़ा बहुत धनाड़ है। समा चलदियां चलदियां महताब कौर दी मां भी चढ़ाई कर गई।
ते रह गए घर दे विच कल्ले महताब कौर ते ओदा बापू रह गया। हुण बापू दी एक मजबूरी बन गई, वो घर विच धी जिहड़ी जंड वांगू जवान सी, जिहड़ी सुंदर सी, ओनू नहीं सी देख सकदा, ओदे दुख नू नहीं सी सहन कर सकदा। उन्हें फिर राजेआल दे पिंड वो जिहड़ा शाहूकार सी शिबू मल, जिहड़ा हिंदू परिवार सी, जिहड़ा पहलां भी विआहिया होया सी, उस दे बच्चे भी सी, उन्हों मजबूरी दे विच उहदे नाल उहदी शादी करनी पई। जदों शादी करनी पई, समा अपनी चाल दे नाल चलदा गया। उस महताब कौर दी कुख दे विच 3 बच्चे आए, लेकिन वो जिहड़ा शिबू मल सी, उन्हें इस शरत ते विआह कीता सी, तू मेरे घर रवेंगी, काम करेगी नौकरां दे वांगू, पर तेरी कुख दे विचों कोई बच्चा नहीं पैदा होवेगा, तेरी कुख दे विचों कोई बच्चे नूं जन्म नहीं लैण दिता जावेगा। 3 बच्चियां नूं उन्होंने उदा ही पहला ही गिरा दिता, जिन्हों आपां गिरा दिता कह दिंदे आ। 3 बच्चियां नूं पहला ही गिरा दिता। अज एक गुरु रामदास दी बख्शिश होई, उस राजेवाल पिंड दे विचों दरबार साहब जान वास्ते संगत इकट्ठी होई। उस महताब कौर ने शिबू मल दे चरनां विच डेग के कहा, कहंदे पति जी गुरु रामदास दे द्वारे ते जा रही है संगत, जे आप इजाजत दिओ कि मैं उथे दर्शन कर आवां। शिबू मल कहंदा नहीं, असी हिंदू हाँ, तू गुरुद्वारे नहीं जा सकती, पहला तू जांदी रही है, पर हुण मैं तैनू नहीं जाण दिना। खैर उन्हें मिन्नतां पाईयां, कहंदी मैं रहना तां तेरी है, नौकरां वांग मैं तेरे घर ही काम करना, मैं कपड़े भी मैं पाटे तेरी मर्जी दे मुताबक पाने हैं, परंतु मेरी ये ते तुसी गल मान लो ना कि मैं जाया वां। खैर उहदे मन विच मेहर पई, वो संगत दे नाल गई। अज महताब कौर जदों गुरु रामदास दे द्वारे ते गई ना, ओदियां अखां दे विचों नीर छलकिया, गुरु रामदास मेरी तेरे चरनां विच अरदास है। ओदियां अखां ने मानो इदां कीता जिद्दां गुरु रामदास दे पवित्र चरण धो दिते होण। गुरु रामदास अज मेरी तेरे चरनां विच अरदास है, तू पहला मेरा पति ले लिया, चला गया, मैं उन्नू भी जर गई, उहदे तो बाद 3 बच्चे मेरी कुख विच आए, वो नहीं इस दुनिया ते आ सके, मैं उन्नू भी जर गई। मेरी तेरे चरनां विच अरदास, तू दस मैं बुढ़ापे दे विच किहदे सहारे अपना समा बतीत करांगी, मैं बुढ़ापे दे विच किहदे आसरे समा बतीत करांगी। मेरी कुख दे विच कुछ ऐसी बख्शिश कर ते शिबू मल नूं को ऐसी समत बख्श जिहदे करके मेरा बच्चा चाहे धी होवे चाहे पुत्र होवे, वो इस दुनिया ते आवे ते मैं उहदे आसरे अपना समा जिहड़ा बुढ़ेपा कड्डां। खैर वो उत्थे अरदास करके आई ते मैं बेनती करां सिखा, जदों तो गुरु रामदास दे घर दे विच अपनी झोली अड्ड के अपना अंदर साफ करके आप तू गिड़ गड़ा के अरदास करदा ना, उदों फिर गुरु रामदास कहंदे जो शरण आवे तिस कंठ लागे, उन्नू फिर अपने सीने ना लाउंदे। फिर उत्थे महाराज कहंदे बिरथी कदे ना होवी। असी कहने अरदासां नहीं पूरियां हुंदियां। जिस तरह एक डीसी दे कोल ओदा सेवादार बाहरों फाइल चक के ओदे अगे रख दिंदा है, डीसी दी मर्जी है उन्हें साइन करने कि नहीं करने। इस तरह सिखा तेरा फर्ज है अपनी फाइल तैयार करके गुरु ग्रंथ साहब दे चरनां विच रख दे, बस रख के फिर तू आराम नाल बैठ, गुरु ते विश्वास कर, वो फिर गुरु तेरा अंदर देख के तेरी फाइल दे ऊपर साइन करेगा। जे तेरा अंदर साफ होएगा ते जरूर साइन होणगे, जिन्नी देर तक तेरा अंदर नी ना धोता जावेगा। जिन्हों महाराज कहंदे भरिए हथ पैर तन देह, पानी धोते उतर सकेहे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओ तोए, भरिए मत पापा के संग ओह धोपै नामे के रंग। जिन्नी देर तक तेरे अंदर नाम दा वासा नहीं होवेगा ना, उन्नी देर तक अरदास नहीं। खैर महताब कौर वापस आई, ओदी झोली दे विच गुरु रामदास जी ने बख्शिश की
ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸ਼ਿਬੂ ਮਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਸ਼ਿਬੂ ਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇਂਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਵਡਭਾਗਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, क्योंकि बापू चढ़ाई कर चुका, नानी चढ़ाई कर चुकी है, पीछे कोई नहीं है। नानकियां दे घर कोई खुशी नहीं ते दादकियां दे घर भी कोई खुशी नहीं, क्योंकि दादकियां ने ते पहला ही शर्त रखी सी भी साडे तन दा, साडे कमाई दा जिहड़ा कपड़ा इहदे तन नूं बिल्कुल नहीं लगेगा। ते वो समा बीतदा गया। महताब कौर चलदे चलदे बच्चे की उम्र 8 ਤੋਂ 9 साल की हुई। बच्चा स्कूल में जो पढ़न लगा, लोगों ने बच्चों नूं ताने मारने, गुआढ़ियां ने बच्चों नूं ताने मारने। शिबू मल दे जिहड़ा अपना पुत्र सी, जदों वो स्कूल पढ़न जांदा सी, उन्हें भी उन्होंने ताने मारने। ते स्कूल नूं जाण लग्गिया भी ताने, ते स्कूल तो आउण लग्गिया भी उन्होंने ताने, जिहड़े सी पै 9 साल की बच्चे की उम्र हुई है। ते बच्चा तुरिया तुरिया जांदा। मैं रात भी बेनती कीती सी, धरती ते पत्थर पिया, पत्थर नूं ठेडा लगा ते बच्चा डिग गया, बच्चे दे सिर ते सट लगी। बच्चा रो पिया, माँ इस रोड़े ने मैनू ठेडा मारिया ते मेरे सट लग गई। माँ कहंदी पुत्र आउण वाले समय दे विच ऐसा काम करी जिथे भी तेनू धरती ते रोड़े मिलन, उन्हां रोड़ियां नूं चक के एक पासे कर दवी, तां जो किसी होर बच्चे नूं ठेडा ना लग सके। इत्थों शुरुआत हो रही है उसके जीवन की घाड़त। इत्थों जिहड़ी है मैं तां बेनती कीती है कि माँ दा जीवन, माँ दी सिक्ख्या, इसे लई ना गुरु ग्रंथ साहब दे 2 श्लोक मेरे सामने आ गए। बाबा कबीर जी पता की कहंदे आ, कहंदे कि बाहर बदल होए सीगे ते उस बदल दे विचों एक बूंद कहंदे धरती ते आई। जदों उस बदल दे विचों पानी दी बूंद हेठां आई ना, ते बूंद बड़ी साफ सीगी। जिद्दां जिद्दां वो बूंद धरती वाल आ रही है, धरती दियां गैसां, हवा दियां गैसां ने बूंद नूं खराब कर दिता, जिन्हों आपां तेजाबी बारिश कहने हैं, वो बन गई। लेकिन जदों बदल दे विचों बूंद आई सी ना, बूंद बड़ी निर्मल सी। जे वो निर्मल बूंद नूं किते संगत चंगी मिल जांदी ते वो बूंद जिहड़ी सीगी वो बड़ी वधिया हो जानी सी। लेकिन उन्होंने संगत माड़ी मिल गई, धरती दे वायु मंडल दियां जहरीलियां गैसां मिलन करके उन्होंने जहरीला करता। बाबा कबीर जी कहते, कबीर निर्मल बूंद आकाश की, निर्मल बूंद मैल तो रहत, कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम विकार, बिन संगत यो मानई, होए गई पठ शार। उस बूंद दे ये हालात होए जिस तरह इट्टां पक्कियां होण, पट्ठे दे विचों इट्टां बाहर कड्डियां होण ते पिछे काली सोहा जिहड़ी है बची होवे, जिहड़ी किसे काम नहीं आउंदी, क्योंकि उन्होंने संगत नहीं चंगी मिली। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम विकार। हुण बादल हुंदा होवे, बारिश पैंदी होवे, थले रेगिस्तान ते धरती जिहड़ी तपी होवे, अग वराउंदी होवे, ओते जदों बूंद आके पवेगी सड़ जावेगी, ओदा कोई कम नहीं। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम विकार, बिन संगत यो मानई, होए गई पटशार। दूसरा श्लोक इहदे नाल ही है बाबा कबीर जी दा, कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए। हुण निर्मल बूंद दे होर अर्थ करा। निर्मल बूंद दा आखरी अर्थ है वो जिहड़ा बच्चा हले पैदा ही होया है, उन्होंने
किते संगत चंगी मिल जावे, मां मिल जावे जपजी पढ़न वाली, दादी मिल जावे रोजाना गुरुद्वारे जाण वाली, बापू मिल जावे जेड़ा किरती होवे ते उस बूंद दे हालात की होणगे। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए, अनेक सियाणे पच गए, बड़े सियाणे हार गए। कहंदे पुत गात्रा ला दे, केस कटा दे, कहंदा ना अनेक सियाणे पच गए, ना निर्वारी जाए। राम जी दास नूं संगत मिली सी महताब कौर दी, ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ओत-पोत सी, उसने ओदी घाड़त ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ राम जी दास खन्ने दे स्कूल दे विच पढ़न लगा जी, 5वीं पास की, 5वीं तो बाद हाई स्कूल विच गया। हाई स्कूल विच गया ते 8वीं दे पेपर हुंदे सी लुधियाने। सुन लिओ ध्यान नाल, लुधियाने पेपर देण आया। जदों शाम नूं घर मुड़न लगा ते हनेरा पै गया। जदों शाम नूं घर मुड़न लगा हनेरा पै गया ते मन विच आया असीं हिंदू हाँ, इत्थे मंदिर भी हैं। ये बिल्कुल नरिंदर सिंह सोच ने अथेंटिकेटेड उन्होंने जीवन से लिखिया। और ये उपर डॉक्टर इंद्रजीत कौर जानते हो ना, पिंगलवाड़ा के जोड़े इस वेले संस्थापक हैगे आ, उन्होंने इतने मोहर लाई है। तो उहदे मन च आया कि मंदिर है, मैं इत्थे रात कट लेना। घर विच भी तो असी राम जी की कथा सुनते हैं, सीता की कथा सुनते हैं, भगवत गीता की कथा सुनते हैं, इत्थे भी मैं रात कटना। जदों उत्थे अंदर मंदिर दे गया ते मंदिर दे पुजारिया ने कह दिता, कहंदे ओए राम जी, ये जड़ी पंगत विच तू बैठा ना, ये पंगत तेरी नहीं, ये पंगत ब्राह्मणा दी है, तू इथों उठ जा। कहंदा मैनू भुख लगी है, मैं रात कटनी है। कहंदे सानू नहीं पता, जे भोजन बाकी बचिया ते तैनू सुट दियांगे, तू खा लवी, जे नहीं बचिया ते रब दी ऐसी मर्जी, उत्थे भोजन नहीं बचिया, ना उत्थे रात कट्टी, ना उत्थे भोजन मिलिया। उत्थों चलदा चलदा गुरुद्वारा रेरू साहब आए। रेरू साहब भी लुधियाने दे विच गुरुद्वारा हाईवे ते सानेहाल तो जांदियां रेरू साहब आए। रेरू साहब जिहड़ा ग्रंथी सी ना, वो रब रूप सी। उन्होंने जाके बेनती की, कहंदे भाई साहब मेरे नानके जिहड़े आ वो गुरसिख हन, लेकिन मैं रात कटनी है, मैनू भुख लगी है। कहंदे पुत्र आ जा, तैनू इत्थे भोजन भी मिलेगा, तैनू इत्थे कमरा भी मिलेगा। रेरू साहब तुसी गुरुद्वारा साहब जाओ, अज भी उत्थे इतिहास लिखिया होया कि भगत पूरण सिंह बचपन दे विच आए, उन्होंने इत्थे रात कट्टी है। क्योंकि कोई भी गल स्टेज ते आपां अपने कोलों नहीं कह सकते। रेरू साहब गुरुद्वारे आए, उत्थे रात कट्टी। कहंदे भोजन भी मिलिया। कहंदे रात कट्टन वास्ते मेरे कोल कपड़े नहीं, कहंदे भलिया तैनू मंजा भी मिलू, तैनू बिस्तरा भी मिलू। उत्थों रात कट्टी है ते उत्थे मन विच आ गया, क्यों ना मैं सिख बन जावां। समा अपनी चाल दे नाल चलदा गया। फतेहगढ़ साहिब दा जोड़ मेला आ गया। फतेहगढ़ साहिब दा जोड़ मेला आ गया। मां दे नाल फतेहगढ़ साहिब गया। जदों फतेहगढ़ साहिब गया ते उत्थे की देखिया, पटियाले दा राजा भुपिंदर सिंह अपने वजीरां दे नाल जिस पंगत दे विच बैठ के लंगर छक रहा सी, उसे पंगत दे विच राम जी दास ते ओदी मां महताब कौर बैठी। पुछया मां ये कौन है? गल विच हार भी पाया, दस्तार भी बड़ी सोहनी, पोशाक भी बड़ी सोहनी। कहंदी पुत ये पटियाले दा राजा भुपिंदर सिंह है। मां ये साडी पंगत विच बैठा? हाँ पुत, गुरु नानक दे घर दे विच ते अकबर भी आया सी, वो भी पंगत विच बैठ के लंगर छकदा सी। इस घर विच राजा, इस घर विच गरीब, इस घर विच अमीर जिहड़े आ वो सारे इक्को थां ते बैठ के लंगर छकदे। मां तू मेरे लागे पाठ करदी है, जपजी साहब दा पाठ करदी है, क्यों ना मैं सिख बन जावां। समा अपनी चाल नाल ओहदे तो बहुत ज्यादा राम जी दास प्रभावित होए कि जिस घर विच कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई किसी दे नाल वितकरा नहीं है, क्यों ना मैं उस घर नूं ही अपनी जिंदगी का आसरा बना लवां। समा चलदा गया। लुधियाने राजेवाल पिंड दे आसे पासे ना काल पै गया।
शिबू मल दे घर दे विच जिहड़ा उन्हें लोकां नूं ब्याज ते पैसे दिते सीगे वो पैसे मर गए। कहण तो भाव थोड़े समय बाद शिबू मल दी भी मौत हो गई ते शिबू मल दी पहली घरवाली ते उसदे बच्चियां ने महताब कौर ते उहदे पुत्र राम जी दास नूं घरों बाहर कढ दिता। बच्चे नूं खन्ने दे होस्टल दे विच छड्डिया गया। मां चली गई लाहौर एक डॉक्टर सी मिंट गुमरी दे लागे, उहदे घर विच मां ने सेवा कीती है, उहदे घर विच भांडे धोते है, उहदे घर विच झाड़ू पोचा करके ते अपने बच्चे नूं फीसां भेज रही है। जदों फीसां भेज रही है ते एक समा ऐसा आया मां जिहड़ी सी उस मिंट गुमरी दे विचों डॉक्टर दे घर विच सेवा कर रही सी ते डॉक्टर नूं सारी रिपोर्ट आ गई कि इहदा बच्चा जिहड़ा राम जी दास है ना वो पढ़ाई चों बड़ा नलैक है, क्योंकि उहदी लिव तां किसे होर पासे लगी हुई सी। उहने ये दुनिया दीयां पढ़ाइयां नूं की करना ते गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे पढ़िया अनपढ़िया जो प्राणी गोविंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार अन जिहड़ी किताब दी जिक्र कीता भाई साहब ने, ये गुरु नानक साहब दी बाणी है जी, पट्टी लिखी 432 अंग ते शुरू हुंदी है। महाराज ने इहदी रहाओ दी पंक्ति पता की लिखी है, मन काहे भूले मूड़ मना जब लेखा तेरा दीवे देवे तौ पढ़िया। कहंदे तेरियां PhD कीतियां उदन प्रवान है जिदन गुरु नानक ने प्रवान करनी है। तेरियां MA कीतियां PhD कीतियां उदन प्रवान है जिदन परमात्मा दे घर तू प्रवान होवेगा। उत्थे महाराज कहंदे पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे, जो प्राणी गोविंद ध्यावे पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। उहदे अंदर ते लिव कोई होर लगी हुई सी, उहदी मंजिल तां कुछ होर सी। वो माता नूं डॉक्टर ने कहा तू जा 2 साल हो गए इत्थे रहिंदी नूं, अपने पुत्र दा पता ही लिया। पुत्र 2 बार 8वीं चों फेल हो चुका सीगा, 2 बार 8वीं चों फेल हो चुका सी। डॉक्टर नूं पता लग गया, उन्हें कहा जे मैं दसिया ते इहदा दिल जिहड़ा टुट जावेगा, ये इत्थे ही टुट जावेगी, इहनूं बहाने दे नाल पंजाब भेजीए, लुधियाने भेजीए, अपने बच्चे दा पता लवे। जदों उस घर चों चलण लगी है ना ते वो डिग गई, उहदे सੱਟ लग गई। जदों सੱਟ लगी, वैसे किसी ने लिखा स्टेशन ते सੱਟ लगी जाके, खैर उत्थे फिर बच्चे नूं सुनेहा भेजिया गया पुत्र तेरी मां दे सੱਟ लग गई है, तू आ जा। बच्चा उत्थों लुधियाने तो चलिया ते लाहौर पहुंचिया। लाहौर जदों पहुंचिया ते मां दी सेवा की, चलो मां ठीक हो गई। मां ने डॉक्टर दी नौकरी छड्डी ते डेरा साहब आ गई। डेरा साहब गुरु अर्जन देव जी महाराज की जिथे शहादत हुई है, गुरु अर्जन देव जी की शहादत उत्थे आ गई। मां उत्थे आ गई है ते अज एक परमात्मा ने भाणा की वरताया। राम जी दास, ये गल 1900 तकरीबन 30 की घटना है, 1930 की घटना है। ते राम जी दास बीमार होया। अज मां ने अरदास की, कहती गुरु रामदास, बड़े ध्यान नाल सुनियो, गुरु रामदास ये तेरी बख्शियां हुईयां दातां दे विचों दात है, ये अज बीमार हो गया है। मैं तेरे चरनां विच अरदास करदी हां, ये तेरा ही बच्चा है, तू ही इनू ठीक करना है। ठीक हो के इन्हें तेरे बच्चों की ही सेवा करनी है, इसलिए मेरे तेरी चरनां विच अरदास। सीधे जे बोल मां ने बोले, ये तेरियां ही बख्शियां दातां दे विचों दात है, ये अज दात तेरी बीमार हो गई है, इसनू ठीक भी तू करना। मैनू आस है, मैं तेरे नाल वादा करदी हां, ये बच्चा ठीक हो के तेरे ही बच्चों का जिहड़ा सहारा बनेगा। ये तैनू कदी भी जिहड़ी पिठ है वो नहीं दिखावेगा। समा पा के बच्चा ठीक होया। उथों दे हैड ग्रंथी सीगे भाई साहब भाई गुरमुख सिंह जी। गुरमुख सिंह जी को बेनती की, असी इत्थे परमानेंट रहना चाहुंदे आ। उन्होंने कहा रह लै पुत्र, इधरले पासे मैं तेनू थोड़ा बहुता इट्टां दे दिना, तू छन बना के इत्थे रह लै। मां ते पुत्र दोनों उत्थे रहने शुरू करे। 1932-33 की घटना। अज मां ने कहा
राम जी दास वैसे नाम रख दिता सीगा भगत पूरण सिंह, परंतु उन्होंने कहा पुत्र अज मेरी ख्वाहिश है तू खंडे बाटे दी पहल छक लै। खंडे बाटे दी पहल छकी, पहल छकण तो बाद मां बीमार हो गई ते मां ने कहा भगत पूरण सिंह जदों मैं रात नूं सौंदी आ ना ते 3 बच्चे आके मेरे गल नूं जफ्फी पाउंदे आ। मां इहदा की मतलब है पुत्र जदों मैं रात नूं सौंदी हाँ 3 बच्चे आके मेरे गले नूं जफ्फी पाउंदे हन, कहंदे हन मां तू कैसी मां है, तू सानू इस धरती ते आउण तो पहला ही खत्म कर दिता, असी जन्म लैना सी पर तू सानू मौत दे दिती। पुत्र वो 3 बच्चे मां इहदा की मतलब है। फिर उन्होंने अपने बच्चे नू शिबू मल दी ओदे बाप दी सारी कहानी सुनाई कि आ कुछ होया पुत्र, मैं ओदे घर विच इस तरीके दे नाल जिहड़ा समा सी वो अपना बतीत करदी सा, इस तरीके नाल मैं उत्थे रहिंदी सा। ते पुत्र जदों भी तैनू जिंदगी दे विच किते कोई बच्चा मिले वो तैनू तेरा भरा वांगू लगे, कोई बच्ची मिले उन्नू अपनी भैन समझ के ओदी मदद करनी। 1734 दे विच ओ मां जिहड़ी सी ना इस दुनिया तो चली गई। भगत पूरण सिंह जिहड़ा सी कल्ला रह गया। 1734 दे विच विसाखी माफ करना गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शहीदी दा दिहाड़ा आया। उस समय जिहड़ियां सिख संगतां सी ना वो सारियां जिहड़ियां सी लाहौर जाके गुरु अर्जन देव जी दा शहीदी दिहाड़ा मनाया करदियां सन। उत्थे की होया शाम नूं एक बच्चे दे रोण दी आवाज़ आई। वो बच्चा जो देखा गया किसी ने आया उहदे मूँह दे विच प्रसाद पा दिता, कोई आया उहदे मूँह दे विच थोड़ा दुध पा दिता, कोई आया उस बच्चे दे मूँह दे विच रोटी पा दी। ये खा खा के बच्चा बीमार हो गया, बच्चे नूं दस्त लग गई, बच्चे दे कपड़े लिबड़ गए। लेकिन जदों देखिया ते वो बच्चा लंगड़ा ते लूला सीगा, वो बच्चा हिल नहीं सी सकता, अपने शरीर की क्रिया आप नहीं सी कर सकता। तकरीबन ओदी उम्र 7 तो 8 साल थी। वो भाई साहब भाई गुरमुख सिंह जी ने आवाज मारी, कहते पूरण सिंह आ मेरे कोल, तेरी मां क्या करदी सी, जेड़ा भी तेनू मिले तू ओदी मदद करनी है, तू उन्नू अपना भरा समझना है। आ पूरण सिंह अज गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तेरे ते बख्शिश कीती है, कोशिश कर इनू अपनी जिंदगी का आधार बना ते इथों ही तेरी जिंदगी जिहड़ी है उहदा सफर जिहड़ा शुरू होवे। भगत पूरण सिंह ने उस बच्चे नू साफ किया, उस बच्चे दे बस्तर बदले, उस बच्चे नू दवा दारू कराई ते उस बच्चे का नाम रखिया प्यारा सिंह। उहदा नाम की रखिया? मेरी एक बेनती है, जिथे असी शहीदां दे दिहाड़े मनाउने आ, जिथे असी संतां महापुरुषां दे दिहाड़े मनाउने आ, जिथे असी इन्हां अस्थानां ते जाके अपना दसवंध भेंट करते हैं, मेरी हथ जोड़ के बेनती है जदों भी तुसी दरबार साहब जाते हो ना, जां जांदियां जां आउंदियां माना वाला जिहड़ा पिंगलवाड़ा ना, एक बार जाके अंदर दी जिंदगी नूं देखिया जावे, उन्हां बच्चियां दी जिंदगी देखी जावे, उन्हां बच्चियां दे नाल कुछ समा बिताया जावे, उन्हां बच्चियां दे लई कुछ लैके जाया जावे। मैं अपने वास्ते नहीं कह रहा, ये मैं उस पिंगलवाड़े दे कह रहा जिथे कुछ ऐसियां मावां समाज तो लुकण दी बजाय गलती कर लैंदियां, उस गलती नूं छुपाउण दी खातर उत्थे बच्चा दे आउंदियां। वो बच्चे भी उत्थे हन जिहड़ियां कुछ औरतां गलती कर लैंदियां, उस गलती नूं छुपाउण दी खातर बाहर भंगूड़े विच वो बच्चे नूं पा जांदियां। वो बच्चे भी उत्थे दास ने अपनियां अखां दे नाल कई बार उत्थे जाण दा मौका मिलिया। ते मैं तुहानूं एक बेनती करां, असली जिंदगी जिहड़ी आ वो उत्थे ही है। असीं ते झूठ दी जिंदगी जी रहे हैं, असीं ते झूठ दी जिंदगी माफ करना जी रहे हैं। असली जिंदगी उत्थे बच्चियां दी है, उन्हां बच्चियां दे नाल समा बिताया जावे, उन्हां बच्चियां दे दुख। साध संगत जी, अमेरिका तो एक डॉक्टर है फिजियोथेरापिस्ट, 1 साल दे विच
2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਥੁੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਥੁੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਈਸਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਫੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਫੰਡ ਦੀ ਹੁਣ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। 5 ਜੁਲਾਈ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਿਓ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਿੱਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੀਨੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਰਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਢੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਭੇਜੋ ਜੇ ਉਥੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਨਪੁੱਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੌਂਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੌਂਤਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ। ਦਾਸ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਫੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੀ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। 2016-17 ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੈਲਫ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
पंजाब की धरती जिहड़ी गुरु साहिबाना की धरती है उन्हां दे उपर अजिहे काम हो रहे। 5 जुलाई की गल मैं सुनाई, अंकुर नरूला ने 1 लाख तो उपर जिहड़ा इकट्ठ किया। मेरी बेनती है आप जी नूं, आप अपने पिंडां दे विच जांदे हो, बड़े सुहिरदता दे नाल गुरुद्वारा साहिब की कमेटी नूं मिलो, उहदे नाल गलबात करो भी आउण वाले समय दे वास्ते तुसीं की सोचिया, किन्ने तुसीं बच्चे अमृतधारी बनाउणे है, किन्नियां नूं गुरबाणी दीयां क्लासां लगाउणीਆਂ, किन्नियां नूं जपजी तुसीं कंठ कराउणा। खैर मैं अपने वापस प्रकरण ते आवां। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ कि असी अपना योगदान इन्हां संस्थानां नूं दईए। हुण मैं थोड़ा जिहा दूसरी एक बेनती, एक मेरे कन्नां दे विच आवाज़ पई सी, वो आवाज़ ये है, गुरुद्वारा साहिब का नाम रखिया गया बाबा मक्खन शाह लुबाना, ठीक है जी, ते कई मक्खन शाह ही कह दिंदे आ। चलो मेरे कोल इस वेले तुसी मेरे कमरे 'च जा सकते हो, मेरे कोल 14 तो 15 सबूत हैं। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ सोई जन, हुण देण वाला कौन है? वो रब ही है जी, बंदा तो किसी को नहीं दे सकता। दूसरा बाबा शब्द किया गया जग्यासू नूं, जिहड़ी संगत है, आ जिहड़ी संगत बैठी है इनू भी बाबा किया गया। गुरु नानक देव जी कहते बाबा होर खाना खुशी खुवार, ये 4 वारी शब्द आ रहा श्री राग दे विच। बाबा होर खाना खुशी खुवार, जित खादे तन पीड़िया, मन में चले विकार। इत्थे बाबा शब्द संगत वास्ते क्या, सिख वास्ते क्या, ते यार जे बाबा ला लिया तो असी सिख तो मान लीए। दूसरा भाई गुरदास नूं पुछिए बाबा शब्द किहदे वास्ते है, कहंदे एक बाबा अकाल रूप। उत्थे बाबा शब्द जिहड़ा वो गुरु वास्ते आया। किहदे वास्ते आया? गुरु वास्ते आया। अगे चलिए होर आपां भाई नंद लाल जी बाबा शब्द किनू कहंदे आ? कहंदे घर बुजुर्गी पाए दत्त कुन बंदगी, वरना मी कशी आखर शर्मिंदगी। कहंदे जे बाबा बनना चाहना ना, चिट्टियां दाड़ियां दे नाल नहीं बनेगा, चिट्टियां दाड़ियां दे नाल बाबा नहीं बनेगा। ठीक है, संसार दे विच तू किसी दे घर जावेगा, तैनूं सत्कार ना बच्चे कह देणगे बाबा इत्थे बह जा, हो सकदा, पर परमात्मा की दरगाह दे विच बाबा नहीं। घर बुजुर्गी जे तू बाबा बनना चाहना, बाय दत्त कुन बंदगी, ते बंदगी दे नाल जुड़ जा। कहंदे हुण बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी जिन्हां दा जहाज बरेते विच फसिया ते अरदास ते कीती होई है, इतों तो आपां नहीं ना मुनकर हो सकते। असी भी अरदासां करते हैं, सुनदा ही नहीं साडियां, क्योंकि है ही नहीं कुछ भी, तो सुने कितों? जे ओदी अरदास सुन के जहाज जिहड़ा सी वो बरेते चों पार हो सकता, ते यार मनना पवेगा अंदर बंदगी है। दूसरा ये बाबा मक्खन शाह जी 7वें पातशाह तो जुड़े हुए हैं गुरु घर नाल। इन्हां दा खानदान धन धन गुरु नानक देव जी महाराज तो बाबा सौण जिहड़े सीगे, लखी शाह बंजारियां दे जिहड़े बजुर्ग सीगे, वो सौण तो जिहड़े सीगे काठियावाड़ गुजरात तो, माफ करना मुजफ्फरगढ़ तो, ये जिहड़े गुरु नानक दे नाल जुड़े हुए हैं। दूसरी गल, तुसी बाणी पढ़न वाले बैठे हो, बाणी दे विच बंजारा शब्द कितनी बार आया? नड़ाले की एक संस्था है, उन्होंने किताब जा छापिया, भाई साहब जी मैं नाल लेके आया, लेकिन मैं देना नहीं, मैं पढ़ना हले, जान लग्या तुहानूं दे जांगा। उस किताबचे का नाम है लखी शाह बंजारा ते मक्खन शाह लुबाणा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ प्रमाण दे दे के दसिया कि लखी शाह बंजारा भी लुबाणा सी। भाई मनी सिंह जिहड़ा सी ओदा जवाई सी, ओदी बच्ची ना विआह सी सीतो बाई ना, वो भी लुबाणा सी, जिन्हें अपने बंद बंद जिहड़े आ कटाए। हुण कोई कवे राजपूत, पहली गल जातां पातां दी गल नहीं है,
परंतु फिर भी सानू अपने मूल दे बारे पता होना चाहिए है। सो इस करके साध संगत जी बाबा मक्खन शाह लुबाणा जिहड़े हन वो एक बहुत वड्डे महाबली सूरमे हन और वो उन्हां दा जीवन धन धन गुरु तेग बहादुर जी दे नाल जुड़िया। दुनिया दी कोई ताकत नहीं इस गल नूं उन्हां तो वख कर सकती है गुरु तेग बहादुर नाल। अगले हफ्ते आ रहा गुरु लाधोरे ते जदों उन्होंने कहा सी ना सच्चा गुरु लभ लिया, सच्चा गुरु लभ लिया, ते थल्ले गुरु तेग बहादुर भी बैठा कह रहा सी सच्चा सिख लभ लिया, सच्चा सिख लभ लिया। क्योंकि उस तो पहला 22 मंजियां सीगियां, मसंद सीगे। गुरु तेग बहादुर जी नूं कह रहा सी ना गुरु लाधो रे ते अंदर गुरु तेग बहादुर जी बैठे भी कह रहे सीगे सच्चा सिख लाधो रे, सच्चा सिख लाधो रे। यही सच्चा सिख है जिन्हें मेरी पहचान की, वरना इत्थे कई आए किसी नूं मेरी पहचान नहीं। दूसरी बेनती गुरु किसी की पहचान का मुहताज भी नहीं हैगा, परंतु जो असलीयत है जो सच है वो सानू अज कल जने खने नूं तुसीं ब्रह्म ज्ञानी ला दिंदे हो, 108 ला दिंदे हो, 1008 108 का पता मतलब की हुंदा? हिंदू धर्म के 108 ग्रंथां का जिन्हां नूं ज्ञान है उन्हां दे पिछे 108 लगदा। जिस विच उपनिषद आ रहे हैं, उन्हां दे पुराण आ रहे हैं, उन्हां दियां स्मृतियां आ रही, उन्हां दे वेद आ रहे हैं, उन्हां दे शस्त्र आ रहे हैं, ते एक गायत्री मंत्र। ये टोटल गिनती जिहड़ी है 108 बनती पई है। कोई 108 लाई फिरदा ते जे पुछिया इहदा मतलब कि यार उन्हें लाया सी, मैं उहदे पिछे देख के मैं ला लिया। सो साध संगत जी बाबा मक्खन शाह लुबाणा एक रूहानीयत का मुजस्मा, धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे वल्लों उन्हां नूं बख्शिश भरिया उन्हां दे उपर हथ है। जिथे भी माफ़ करना, जिथे भी इस कौम विदेशों में गई है ना, इस कौम ने अपनी किरत का, अपनी कुर्बानी का जिहड़ा वो उन्होंने जिहड़ा झंडा गड्ढिया। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। सेवक परिवार दे वल्लों खंड पाठ साहिब की सेवा लई गई है। मैं सेवक परिवार वालों सुन रहा सी, भाई साहब पूछ रहे सी किहदे गल च सरोपा पाइए, तो जे मेरे वर्गा हुंदा ते मैं कहंदा मेरे पाया जावे, पर सेवक परिवार कहंदा रब दा वास्ता किसी दे गल च सरोपा ना पाया जावे, सारियां दे वास्ते चढ़दी कला दी जिहड़ी है वो अरदास कीती जावे। साध संगत जी ये जिहड़ी निमरता ना उही सानू परमात्मा दे घर विच प्रवान करदी है, जिन्हों बाबा फरीद जी कहंदे आ थियो पवाही दब जे साई लोड़े सब, एक छिजे बिया लिताड़िए तां साई दे दर धक्के मार के फिर वाड़ दी भी वड़ जा, हुण तू साई दे घर तू उत्थे जाके प्रवान हो गया। दब पता ना अपने वो दरिया के आसे पासे उगदी है, वड्डदे आ उन्होंने, ओदे हथ लाने ते हथ साडा कट्टिया जांदा, फिर उन्होंने रस्ते विच बिछा दिंदे आ, उत्तों दी डंगर लंघदे आ, उत्तों दी गड्डे लंघदे आ, फिर उन्होंने चक के पानी विच भेज दिंदे आ। जदों उन्होंने पानी विच भेज दिंदे आ, डोब दिंदे आ, नक तक डोब दिंदे आ, मर जांदी है, फिर उन्होंने सी के ओदी चटाई बनदी है, ओदी चटाई फिर गुरुद्वारियां च लिया के बिछाई जांदी है। उस वे चटाई ते बहने आ, वे जिहड़े भावना वाले सिख होंदे आ, वो जिहड़े भावना वाले सिख उत्ते बैठे होंदे आ, उन्हां दे चरनां दी धूड़ ओचों चक के अपने मत्थे ते लाउंदे आ। इहनूं फिर बाबा फरीद जी कहंदे थियो पवाही दब जे साईं लोड़े सब, एक छिजे बिया लताड़िया तां साईं दे दर। कहंदे किन्नी निमरता तेरे अंदर है, कित्थों कित्थों तू लंघी है ते तां तू गुरु दे घर च कहंदे प्रवान होई है। सो साध संगत जी वाहिगुरू दे चरनां विच अरदास, गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी नूं वाहिगुरू चढ़दी कला बख्शे। इसे तरह निडरता दे नाल मैं बेनती करांगा, निडरता दे नाल सिख कौम दे जिहड़े कारज है वो करो, क्योंकि जदों असी कारज करते हैं तो कुदरती गल है साडा विरोध भी होना ही है। गुरु नानक नूं नहीं बख्शिया तो उन्होंने फिर कहना पिया कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। जे गुरु नानक नूं नहीं बख्शिया तो असी दे ओदे पैरां दा एक नौ दे मास दा टुकड़ा भी नहीं हैगे। ते इस करके निडरता दे नाल अपने कौम दे जिहड़े चढ़दी कला दे काम करो, आप भी बाणी पढ़ो ते संगतां नूं भी बाणी पढ़ाओ, होइयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम